نہ تو والدہ کا ذکر آیا ہے اور نہ تو وہاں پر بیوی کا ذکر آیا. وہاں پہ نساء کا لفظ آیا. نساء کا مطلب ہوتا ہے سر عورت, بیوی کا مطلب ہوتا ہے ازواج. تو وہاں نہ بیوی ہے نہ والدہ ہے, وہاں پر سر عورتیں ہیں. اب رسول اللہ کو عورتیں اور خوشبو پسند ہے, تو سر یہ کیسا نبی ہے جو عورتوں کو پسند کرنے دنیا میں آئے سر؟ یار ہمیں تو دین کے بارے میں جو پتہ ہے نا, ہم صحیح راست پہ ہیں. ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے یہ تو کسی کو مارو, کسی کو ظلم کرو, کسی عورت پر ظلم نہیں, یہ کرو. تو نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا قرآن تو یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کو مارو, ان پر ظلم کرو, ان کے سامنے اکڑ کے چلو, ان کی ماں بہن بیٹیوں کو لونڈیا بناؤ. سر آپ کا اسلام یہی سکھاتا ہے سر, جھوٹ نہ بولیں. نہیں میرے دوست اس طرح ہم لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. میں میرے دوست پاکستان ایسا سے ہوں, ہی ہمارے یہاں پر میرے دوست اگر آپ پاکستان سے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کیا کرتے ہیں. آپ پاکستان میں جو ہے وہ ہندوؤں اور کرسچن کی لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں, ان کی 40-50 سال کے بابوں کے ساتھ شادی یار کرتے ہیں, اور پھر کورٹ میں پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو آپ یہ جو بات جناب کر رہے ہیں نا سمیر کہ جناب پاکستان میں, بھائی پاکستان کے حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں ہم لوگ, تو جھوٹ نہ بولے. میں پھر کہہ رہا جناب ہوں آپ سے. سمیر صاحب ہندوستان میں رہتے ہو, جی, لیکن یہاں کے ماحول کے بارے میں پتہ ہے. اگر چند لوگ کرتے ہیں نا, اس کی ذمہ میرے داری پورا پاس پاکستان میں میرے بھی پاس جو ہے, نہیں سنیے میری بات سنیے شریف بھائی, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, ایک میری بات سنیے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمیں پاکستان کے حالات کا نہیں معلوم ہے, تو ہمارے پاس کم سے کم 50 ایکس مسلم جو ہے وہ پاکستان سے ہیں, جو روز بتاتے ہیں کہ پاکستان کے حال کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاکستان کے جو اخبار ہیں ڈان, آپ کی پاکستان کی جو نیوز ایجنسی ہے ARY, وہ روز بتاتی ہے سر آپ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں کچھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی اپنی نیوز ایجنسیز روز بتاتی ہے. سدھارتھ صاحب, مٹھو میاں وہاں بدنام ہے یہ کام کرانے کے لیے, اس کی عمر نکل گئی یہی کراتے ہوئے کہ ہندو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یا کرسچنس کو, ان کو نکاح کا زبردستی ان کا کنورژن کرانا اور نکاح کرا دینا بوڑھے بوڑھے بابوں سے. اور ابھی ریسنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لڑکی 13-14 سال جس کی عمر رہی ہوگی, ابھی یوٹیوب پہ ان کے نیوز چینلوں پہ پڑا ہوا ہے کہ وہ لڑکی کو اس کا کنورژن کرایا گیا, اور اس نے نکاح کا کوئی مسئلہ ہوا تو نکاح نہیں ہو پایا, لیکن وہ لڑکی کو مسلمان بتا کے پھر اس کو مطلب اگر یہ اسلام چھوڑے گی, اس نے کہا کہ مجھے زبردستی کیا گیا ہے, تو یہ مرتد کی کیٹیگری میں رکھ کے وہ لڑکی ابھی بھی ڈیٹینشن سینٹر میں رکھی ہوئی ہے. ان کی گورنمنٹ نے اس کو ماں باپ جی, کے حوالے نہیں کیا. آپ یوٹیوب پہ ابھی بھی دیکھ لیں, اس کے ماں باپ گڑ گڑا رہے ہیں, لیکن پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے اس لڑکی کو لے جایا جا رہا ہے کیونکہ وہ مردد کی کیٹیگری میں آ گئی ہے. ایک قصہ نہیں ہے دعوت مرتد صاحب, کسی کی طرف سے ایک آ رہا ہے, ذرا کسی کی طرف سے ایک آ رہا ہے, ذرا میوٹ کریں گے ایک منٹ, ٹیم ممبر ذرا اپنا میوٹ رکھنا, تمہاری طرف سے بہت ہی کو آ رہا ہے. ایک قصہ نہیں ہے دعوت مرتد بھائی, اصل میں ان کی جو پاکستان کی اپنی سرکاری رپورٹ ہوتی ہے نا, جو یہ UN کو دیتے ہیں ہر سال, یونائٹڈ نیشن کو, اس میں یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہر سال جو ہے 1000 سے 1500 بچیاں اسلام قبول کر کے مسلمانوں سے شادی کرتی ہے, جبکہ اصل آنکڑا جو ہے وہ 1000-1500 کا نہیں ہے بلکہ 3000 سے 5000 کا ہے. تو سر وہ اسلام قبول کیسے کرتی ہیں؟ ان کو سب سے پہلے ان کے گھر سے اغوا کیا جاتا ہے, اغوا کرنے کے بعد میں ان کا زبردستی جو ہے نا سر وہ نکاح کرا دیا جاتا ہے بابوں کے ساتھ میں, ان لوگوں کے ساتھ میں جن کی عمریں جو ہے 40 سے 50 سال کے بیچ میں ہے, اور وہ اپوز کرتی ہیں تو زبردستی نکاح کرایا جاتا ہے سر. اس کے علاوہ ان لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے کورٹ میں, پولیس میں یا کہیں بھی آپ نے یہ وٹنس دی کہ آپ کو زبردستی اٹھایا گیا ہے, زبردستی آپ کا نکاح کرایا گیا ہے, تو پھر آپ کے پورے خاندان کو ہم قتل کر دیں گے, اور ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری حکومت ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. بھائی روتے گڑ گڑاتے رہ جاتے ہیں, وہاں کچھ نہیں ہوتا, کھلے عام گنڈا گردی چلتی ہے, اور یہ ہمیں آگے سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہیں جناب, اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگ کہہ رہے. جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر کرسچنوں کی بہت بڑی آبادی ہے, لیکن کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ جس طرح کے اوکے, جو واقعات ہوتے ہیں, مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کے پاکستان میں ڈیورنگ دا رمضان کے مہینے میں کیا کسی بھی غیر مسلم کو کسی بھی طرح کی دکان چلانے, سامان بیچنے کا کیا اس کو اجازت ہے؟ بالکل جناب, یہاں پر تو مسلم بھی دکان کھولتے ہیں, کسی کو یہ نہیں کہ آپ دکان بند کر میں دو, کہہ آپ رہا کچھ ہوں نہیں کھاؤ, میں اس کہہ رہا طریقے. ہوں میں کہہ رہا ہوں
मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल ये है, क्या रमजान के महीने में किसी भी गैर मुस्लिम को फल फ्रूट बेचने, खाने की सामान बेचने की इजाजत है दिन में? बिल्कुल समीर भाई, इजाजत है। मैं अब आप एक रमजान न, का महीना नहीं है, वरना मैं आपको क्लिप भेज देता। आप आप एक नंबर के झूठे हैं। आपका झूठ मैं अभी एक्सपोज कर देता हूं। आपके सामने एक वीडियो है, ये पाकिस्तान का वीडियो है। इस बच्ची के साथ जो कि गैर मुस्लिम है, क्या किया जा रहा है अपनी आंखों से देखें। अगर थोड़ी सी भी कदर जान लेते, न छोटी सी बातों पे दिल तोड़ते, समझ लेते वो जो दर्द हमारा। मैं सॉन्ग बंद कर देता हूँ, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। ये आप अपनी आंखों से देख लें, उससे जबरदस्ती निकाह नामे के पेपर पे दस्तखत करवाए जा रहे हैं। वो बच्ची चीख रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, वो दस्तखत नहीं करना चाहती, जबरदस्ती उससे दस्तखत कराए जा रहे हैं। ये हाल है आपके पाकिस्तान का, और आप यहाँ करके झूठ बोलते हैं हमारे सामने बेशर्मी से कि नहीं ऐसा नहीं होता यार है। समीर भाई, मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है, लेकिन एक आध तो वाक्य ये जो क्या होते हैं है? ना, आप ये क्या है भाई? आप ये स्क्रीन पे क्या है? पूरे पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करते। हाँ, ये एक आध वाक्य होगा, मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा हूँ जो आप एक दिखा रहे हो। एक वाक्य बताओ हिंदुस्तान में जो किसी मुसलमान लड़की को जबरदस्ती किसी हिंदू से शादी कराई गई हो, एक सिंगल वाक्य बता दो चलो। यार, मुझे शौक नहीं है किसी मजहब के बारे में या किसी मुल्क के बारे में बुराई करने का। मैं यहाँ पर लड़ता रहता नहीं, हूँ लोगों आप के लोग साथ कहते हैं भाई। ना, आप लोग कहते हमें हैं ना, हमें आप लोग कहते हैं ना, सुनिए, आप लोग कहते हैं, आपका कुरान कहता है कि जितने भी काफिर हैं वो शर्रुल बरिया हैं, ये बदतरीन मखलूक हैं। आपका कुरान कहता है कि इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, जो मुशरिक हैं ये नजस हैं, टट्टी है, पोटी हैं। ये शर्रुल बरिया, ये गिरी हुई निचले तबके की कौम, ये काफिर, ये मुशरिक जो टट्टी हैं आपके मुताबिक, ये इनके अखलाक ऐसे हैं कि ये आपकी बच्चियों को किडनैप करके जबरदस्ती उनकी शादियां नहीं कराते। लेकिन आप जिनको अशरफुल मखलूक बनाया अल्लाह ने, आपकी इतनी घटिया हरकतें हैं कि आप ऐसे ऐसे अमल करते हैं और फिर बेशर्मी से आकर के झूठ बोलते हैं। नहीं समीर भाई, इस तरह नहीं होता जिस तरह आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं हमारे बारे में। चंद लोग करते होंगे, इसका भाई मतलब ये नहीं कि सारे भाई करते हैं। भाई अगर हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ नहीं होना चाहिए उस एक्स्ट्रा का। हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो रियलिटी है। चले समीर अब भाई, एक ये काम इट्स करता हूँ, आप रियलिटी। मेरी मैं बात देता हूँ सुनेंगे ना, इनको। मैं आपकी बात सुनूंगा। जी। एक और बार ये मैं बहुत बड़ा इंटरप्ट कर पॉइंट सकता है, हूँ ये थोड़ा इस सा? बात की। एक सेकंड है, रुक जाए अभी। एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो है ना शरीफ भाई, वो ये है आपके अच्छे हालात का पाकिस्तान के, कि 1947 में जब डाइवर्जन हुआ था तो पाकिस्तान में 22% हिंदू थे सर। अभी 1.5% कैसे रह गए, चल, कहाँ गए बाकी? बाकी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान चले गए। मैं उसकी बात जो बात की मुल्क बात कर इसी रहा हूँ। के पास। हिंदुस्तान जाने के बाद, हिंदुओं के हिंदुस्तान आने के बाद और मुसलमानों के पाकिस्तान जाने के बाद, जब पहला इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में और तुम्हारा जिन्ना प्रधानमंत्री बना था और हमारे भारत में नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तब उसके बाद वो किया गया था पॉपुलेशन काउंट। और उस पॉपुलेशन काउंट का रिजल्ट ये है कि आपके पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, अभी 1.5% है। वो 20.5% कहाँ गए भाई? ये आप क्या कह रहे हैं, ये सारे कन्वर्ट हो गए, जबरदस्ती कन्वर्ट किए गए। ओके, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ गए। यार, अगर आप बता रहे हो तो आपके पास पूरी प्रूफ तो होगा ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले मेरे पास जो है 22 आम थे, अभी मेरे पास 20.5 रह गए हैं, 20 पूरे और एक आधा। तो मैं मेरे आप सॉरी, अभी मेरे मैं पास 1.5 आप रह गया है। 20.5 आम किसने खाए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। यार समीर भाई, ये सुनते आते हैं हम लोग, ये फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहा, ये इससे पहले भी बोल चुके हैं। पाकिस्तान में बोला जाता है, हिंदुस्तान में बोला जाता है। आपका काफी प्रोग्राम में सुन चुका हूँ मैं। तो जब कभी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ये बोला जाता है, पाकिस्तान में भी बोला जाता है, हिंदुस्तान में भी बोला जाता है, ये रियलिटी है,
तो फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? फिर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इस टॉपिक को यहीं स्टॉप कर देते हैं। आपका झूठ मैंने दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अच्छा अब अच्छा नाउ कम समीर बैक टू भाई, द टॉपिक। एक सेकंड अगर नाउ कम बैक टू द टॉपिक, और मुझे ये बताओ कि अगर अल्लाह ने मोहम्मद साहब को उसवतुल हसना बना करके भेजा, उसवतुल हसना मानते हैं ना आप? बेहतरीन रोल मॉडल जिसको फॉलो करना है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अगर अगर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए उसवतुल हसना यानी कि बेहतरीन और नमूना बना करके भेजा है, तो क्या वो नमूना ये काम करेगा कि वो औरतों के पीछे भागेगा, औरतों को पसंद करेगा, 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करके अडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको, यानी कि कल्चर है किसी को गोद लेने का, वो खत्म कर देगा, और साथ ही साथ जो है काफिरों की माँ बहन बेटियां गुलाम बना करके उनको रेप करने और उनको मार्केट में बेचने को अलाउ करेगा? क्या एक उसवतुल हसना बेहतरीन नमूना ऐसा हो सकता है? यार समीर भाई, आपसे एक पूछना था। ये जो आप जो कहते हैं कि अ, औरतों को गुलाम बनाना, ये खत्म कब हुआ था? इसके बारे में मालूमात लेनी थी, कभी अगर भी आप दे खत्म नहीं सकते हो। हुआ, कभी भी खत्म तो नहीं ये हुआ कहते है। हैं कि अगर अगर कहीं सुने मेरी बात, अगर कहीं खत्म प्रैक्टिस करना बंद कर दिया गया है तो वो दुनियावी कानून की वजह से कंट्रीज ने, मुल्कों ने करना खत्म किया है इसको प्रैक्टिस, क्योंकि ये यूएन के कानूनों के खिलाफ है। और जो यूएन के कानूनों के खिलाफ जाता है, यूएन के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारी कंट्री, सारे के सारे मुल्क उन कंट्री का बाइकआउट करती है जो यूएन के रूल रेगुलेशन को नहीं मानता। यूएन के रूल रेगुलेशन में एक रूल ये भी है कि आप किसी भी इंसान को बंधुआ मजदूर, गुलाम नहीं बना सकते, और ना आप किसी इंसान को किसी सामान की तरह बाजार और मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं। तो जब 1981 में सऊदी अरेबिया से करार हुआ और सऊदी अरेबिया अपना सबमिट लेकर के पहुंचा यूएन में, अपनी दरख्वास्त लेकर के कि हमको यूएन में हिस्सा दो, यूएन में शामिल कर लो, तो यूएन ने उनके सामने शर्त रखी, तुम्हारे यहाँ इंसानों का व्यापार होता है, गुलाम खरीदे और बेचे जाते हैं जो हमारे लॉ के खिलाफ हैं, लिहाजा पहले आप इस प्रैक्टिस को बंद करें, तब हम आपको यूएन की सदस्यता देंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने इस प्रैक्टिस को बंद तो नहीं किया, लेकिन ओपनली करना बंद कर दिया, यानी कि वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि ये नहीं चलेगा अब यहाँ पर। लेकिन अंदरूनी तौर पर आज भी अरेबिक लोग जो हैं वो गुलाम रखते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। इसका अगर आपको हवाला चाहिए, आप एप्लीकेशन पे जाएं, और एक एप्लीकेशन है सऊदी अरेबिया में ही जो प्ले स्टोर पर रन होती है और गूगल पे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सऊदी अरेबिया में किसी भी इलाके में गुलाम खरीद और बेच सकते हैं। आज भी प्रैक्टिस में है। सेक्स स्लेवरी कभी भी ख़त्म हुई ही नहीं है इस्लाम में। अगर हुई है तो मुझे कुरान की वो आयत या मोहम्मद की वो हदीस दे दें जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि आज के बाद गुलामी का जो कॉन्सेप्ट है वो बंद कर दिया है अल्लाह ने, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से शराब हराम कर दी। दे दें सर, कहाँ लिखा है? नहीं समीर भाई, मैंने भी देखा था, मैंने भी कोशिश की थी इस बारे में, थोड़ी स्टडी की थी, नहीं मिला। मैं सिर्फ आपसे मालूमात ले रहा था तो मिलेगा कहाँ से भाई बस। जब है ही नहीं? मैं सिर्फ पूछ रहा था ना, शायद आपको है इस तरह के बारे में पता। यानी जी कि मैंने आप कह आपको रहे हैं कि बता इस्लाम में दिया। भी खत्म नहीं हुआ। नहीं सर, ता कयामत तक खत्म नहीं होगा। और इसका रीजन ये है सर कि जिस चीज का हुक्म कुरान ने किया हो, अल्लाह ने किया हो, उसको किसी बशर को एब्रोगेट करने का हक नहीं है सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद जा चुके, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका, जिब्रील दुनिया में नहीं आता वही लेकर के, अल्लाह दोबारा कोई हुक्म नहीं भेजेगा। अल्लाह ने अपना लास्ट मैसेज, लास्ट हुक्म कुरान में भेज दिया, जिसमें उसने कह दिया वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम। और सूरह मोमिनून की आयतों में उसने कह दिया कि मोमिनों की पहचान ये है। चले मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये देखिए मोमिनून की आयतें मैं आपके सामने रख करके बता देता हूं सर। ये देखिए, यहां से पढ़ते हैं हम 1 से। बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए, यानी कि कामयाब हो गए वो ईमान वाले। एक मोमिनून की दो दो कह रही है जो नमाज में आजिजी नियाज करते हैं, यानी कि जो नमाज में आजिजी अख्तियार करते हैं। इसके बाद तीसरी पहचान, अब ये मोमिनों की पहचान बता रहा है अल्लाह जो कामयाब होंगे वो। तीसरी में बताया है वल्लज़ीना हुम अन अनिल लगवी मुरिज़ून, और जो
बेहुदा बातों से यानी लघवियात से मुंह मोड़े रहते हैं, यानी कि लघवियात से दूर रहते हैं वो मोमिन। और चौथी पहचान है वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं, ये तीसरी पहचान है। और चौथी पहचान ये है भाई मेरे कि और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की, अपने उज़्व तनाजुल की हिफाजत करते हैं। किससे? 5वीं में पढ़ेंगे आप, किससे? सिवाय अपनी बीवियों और अपनी गुलाम लौंडियों के, अपनी कनीजों के उनके के जो उनकी मिल्कियत होती हैं, कि उनसे मुबाशरत करने में उन्हें कोई मलामत नहीं है। ये मुसलमान जो लौंडी रख करके उसके साथ मुबाशरत करता है, वो मुसलमान है जो फला पाएगा, कामयाब होगा, जन्नत में जाएगा। भाई कैसे खत्म कर सकते हो स्लेवरी? बताएं शरीफ भाई, इस आयत के मुताबिक स्लेवरी कैसे खत्म हो सकती है इस्लाम से? समीर भाई, इस बारे में चंद बंदों को पता है, हर बंदे को नहीं पता होता। ये लौंडियों का जो शरीफ किस्सा भाई, आप बता आप रहे हो समझे कुरान नहीं। में, शरीफ बिल्कुल भाई, बिल्कुल एक सेकंड। नहीं, बिल्कुल शरीफ भाई, Siddha team member, no, सर ने जो आप Siddha team member, no, hold. Siddha team member, don't break the rule. You are not allowed to talk with Muslim till we are not allowing you, because you are non-Muslim. और मैं जो है ना रूल्स नहीं तोड़ता और ना मैं किसी के साथ जो है ज्यादती करता हूँ। आप रुक जाएं सिद्धा टीम मेंबर। अगर आप ये कह रहे हैं शरीफ भाई कि इसका बहुत कम लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को इल्म ही नहीं है, तो अगर कोई गलत चीज कुछ चंद लोगों को पता हो, इससे वो गलत चीज सही तो नहीं हो जाती ना? समीर भाई, ये उस दौर में था ना, ये अभी मनसूख हो चुका है, ये है नहीं इसमें दौर अब इस मसला बारे यही में। तो है ना। मसला मैं बता रहा हूँ आपको शरीफ भाई क्या है। ये उस दौर में था, क्यों? क्योंकि उस दौर में जो है वो इस्लामी कानून था, रसूल थे, सहाबा थे, ताबाइन थे, तब ताबाइन थे। ये इस दौर में प्रैक्टिस नहीं किया जाता, क्योंकि इस दुनिया में, इस दौर में जो है वो दुनियावी कानून चलते हैं, अल्लाह के कानून नहीं चलते। अल्लाह के कानून आज भी जिस मुल्क में चल रहे हैं, ये प्रैक्टिस किया जा रहा है मेरे भाई। और अल्लाह का कानून जब फिर से कायम होगा, ये फिर से प्रैक्टिस किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम के कानून में ये ता कयामत तक अलाउ है, इसमें वक्त की हद नहीं है। जी शरीफ भाई, अग्री है मेरी बात से आप या नहीं? मैं बिल्कुल एग्री हूँ भाई, मैं इस बारे में एग्री हूँ, कुरान में लिखा हुआ है। अब आप मुझे लेकिन इस बताएं बारे कि में क्या अगर जैसे मैं जी बोलें। इस बारे में जैसे मैं अपने किसी यानी के दोस्त, अभी पिछले महीने की बात है, तो इसी बारे में ऐसे बात कर रहा था लड़कों से। लड़कों ने क्या है, तुम गलत बात करो, इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैंने जब उनको दिखाया कि यार मैं इन चीज़ों को हम लोग नहीं मानते, 4-5 लड़के थे मेरे दोस्त यार थे, फिर नहीं यार ये हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ें है लेकिन अभी मनसूख हो चुकी है। लेकिन ओके, इस बारे में मुकम्मल यानी कि लोगों मैं आपको बता दूं मालूम शरीफ भाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कुरान कोई हुक्म सादिर करे तो उसकी एब्रोगेशन, उसकी वापसी, उसका हटाना या उस हुक्म को मनसूख करने का जो हक है वो सिर्फ कुरान के पास है। मानते हैं ये बात आप? हाँ बिल्कुल। ओके, तो अगर कुरान में गुलाम, लौंडी और कनीजों के साथ मुबाशरत करने पर कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ऐसा करने वाले भी लोग ऐसा करने के बाद भी कामयाब होंगे, फला को पाएंगे, यानी कि जन्नत को जाएंगे, तो फिर इसकी एब्रोगेशन और इसको मनसूख होने का जो हुक्म है वो आपको कुरान से ही तलाश करना होगा कि कहाँ अल्लाह ने ये कहा है कि अब हमने तुम्हारे लिए गुलाम लौंडियों के साथ मुबाशरत करना हराम कर दिया है, या जायज नहीं किया, या इतना ही कह दिया हो कि उसको अब हम अच्छा नहीं समझते। आप पूरी कुरान तलाश करेंगे, आपको ऐसी एक भी आयत नहीं मिलेगी, क्योंकि सर है ही नहीं। लेकिन समीर भाई इसमें ये भी नहीं लिखा कि लाजिम मनसूख नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये भी नहीं लिखा कि लाजिम है मैं इस तरह की हरकत करूं। अब मेरा दिल चीजें मलामत करता है मुझे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये अच्छी बात आपने कही है।
सुनिए ना, सुनिए, ये आपने मुझे अच्छी जबरदस्त बात कही है। सुनिए ना, आपने कहा कि लाजिम नहीं है, अगर मैं आपको कुरान से साबित करूं कि आपके ऊपर लाजिम है, फिर अगर आप दिखा सकते हो दिखा दें, मेरे इल्म में इजाफा होगा, मैं अपने दोस्तों को बता सकूंगा। चले, ये दीजिए, ये देखिए, मैं लाजिम बता देता हूँ आपको कहाँ है। फर्ज बता देता हूँ सर कहाँ है आपके ऊपर, फर्ज है। और बताए, फर्ज से बड़ी तो कोई चीज नहीं है ना, फर्ज तो लाजिम होता है ना सर। ये लीजिए, सूरा निसा की आयत नंबर 24 है, वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैरि मुसाफिहीन फमा इस्तमतातुम बिहि मिन्ना फातुहुन्ना अजरुहुन्ना फरीदतन ला जुनाह अलैकुम फीमा तरैदतुम मिन बाद कुर्जति इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। इस आयत के अंदर जो है वो हुक्म दे रहा है अल्लाह, हुक्म कि ये तुम पर फर्ज कर दिया है, ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ हुक्म है। किताब अल्लाहु अलैकुम, अल्लाह का लिखा हुआ फर्ज है तुम पर। कैसे, ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, वो तुम्हारे लिए जायज है। ये हुक्म क्या है सर? ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है, दर्ज कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर। तो जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हुक्म के तौर पर लिख दिया है, वो लाजिम नहीं है क्या शरीफ भाई? और कोई अच्छा सा आर्ग्यूमेंट दे शरीफ भाई मुझे। एक मैं समझ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी आवाज़ में इंटरनेट प्रोसेस है, तो आपकी आवाज़ से आ नहीं रही थी। ओके, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मैंने यहां पर पढ़ा है कि शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, यानी कि जो पहले से किसी के निकाह में हो, जिनके शौहर हों, वो मुसलमानों पर हराम है। लेकिन मगर वो जो लौंडी बन करके तुम्हारे कब्जे में आ जाए, वो तुम्हारे लिए हलाल है। आगे लिखा हुआ ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है। जो हुक्म खुदा ने तुम्हारे ऊपर लिख दिया है वो लाजिम है कि नहीं है भाई? अरबी में देखना चाहते हो, लिखा हुआ है किताब अल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर किताबत कर दिया, यानी कि लिख दिया ये हुक्म। उहिल्ला लकुम। अब मेरे को भाई बताए मुझे, आपने कहा था कि लाजिम नहीं है, लाजिम है कि नहीं है भाई? इसको देखो तो लाजिमी लग रहा है। चलें, शुक्रिया। तो मैंने आपको ये कहा था कि और कोई अच्छा सा मुझे आर्गुमेंट दें जिससे साबित हो कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी नहीं है सर। यस समीर भाई, हमें जो यानी कि पढ़ाया गया है, बचपन से जो सिखाया गया है, सीधी सी बात है, जो हमारी फैमिली में, हमारे जो आस पड़ोस में, क्योंकि हमारे हमसाए क्रिश्चियन भी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जहाँ मैं जॉब करता हूँ हिंदू भी है। हम किसी के साथ गलत रवैया अख्तियार नहीं करते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने इलाके की बात कर रहा आप हूँ। अच्छे आदमी इस हैं, तरह का वाकया तो इस तरह का हुआ ही नहीं। आप अच्छे आदमी हैं, आपका इलाका अच्छा है, मैं आपकी तारीफ और करता हूँ। आप आप पता है मसला क्या है सर? शरीफ भाई, आप अपने अल्लाह और अपने रसूल अल्लाह से बेहतर इंसान हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उन्हीं जो हमें सिखाया हमें नबी की चीजें सिखाई अच्छा गई ठीक है, अगर आप उनसे बेहतर नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं, तो अभी फैसला कर लेते हैं कि बेहतर कौन है। आप मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपके इलाके में और खुद आप, बजाते खुद आप जो है किसी के साथ गलत नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, वो क्रिश्चियन हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, आप किसी को नहीं सताते। तो एक तो आप हो गए, एक आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिमों को, काफिरों को सताते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, उनकी माँ बहन बेटियों को उठा करके जबरन उनका निकाह बड़े बड़ी उम्र के लोगों से करा करके उनको इस्लाम में दाखिल कराते हैं। आप दोनों में से कौन अच्छा है सर? मतलब उस तरह के लोग अच्छे हैं जिस तरह के लोग आपके आसपास हैं, या वो लोग अच्छे हैं जिनकी मैंने दूसरी मिसाल दी आपको? समीर भाई, मैं आपकी आवाज़ सही तरह सुन नहीं पाया, क्योंकि इंटरनेट मेरा मतलब बहुत सुस्त है, तो आपकी आवाज़ सही आ नहीं रही थी।